السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیا دور اور میں ہوں تنزیلہ مظہر اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مرتضیٰ سولنگی صاحب۔ کشمیر کی آئینی حیثیت کے بدلنے کے بعد سے جو اپڈیٹس ہیں وہ ہم دو بار آپ کے سامنے اپنی گزارشات رکھ چکے ہیں۔ مرتضیٰ سولنگی صاحب، پاکستان کی طرف سے بہت زیادہ بیانات بھی آ رہے ہیں، صدر ٹرمپ کی کالز بھی کافی آ رہی ہیں اپنے دو اچھے دوستوں کو، جس میں انہوں نے ایک وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو اپنا گڈ فرینڈ کہا اور ایک مودی صاحب کو جو کہ بھارت کے وزیر اعظم ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ تاثر مل رہا ہے کہ سفارتی سطح پر پاکستان جو کوششیں کر رہا ہے، شاید جو ایجنڈا ہے وہ بہت زیادہ کلیئر نہیں ہے۔ آپ کے خیال میں کیا سفارتی سطح پر جو کرنے کی ضرورت تھی پاکستان اسی طرف جا رہا ہے، اور پھر اب جو لیٹسٹ ہے نیو یارک ٹائمس کو جو انٹرویو دیا خان صاحب نے، انہوں نے کہا کہ یہ یوزلیس ہے، بات کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں رہ گیا؟ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان اپنے طور پر کوشش تو کر رہا ہے، یہ درست نہیں ہے کہ پاکستان کوشش نہیں کر رہا۔ ہمارے جو سفیر ہیں دنیا بھر میں، اور ہمارا جو وزارت خارجہ ہے، ہماری پارلیمان ہے، وہ اپنے طور پر ایک جس کو شور ڈالنا کہتے ہیں نا، تو ہم اپنا شور تو ڈال رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہمارا شور جو ہے کسی کو قابل قبول نہیں ہے، یہ ایک افسوسناک ایک حقیقت ہے۔ اچھا، جن کو قابل قبول نہیں ان کی طرف آپ، لیکن پہلے بتائیے کیا پاکستان کے پاس یہ شور کرنے کے علاوہ کوئی آپشنس ہیں؟ نہیں، کوئی آپشنس نہیں ہے۔ جنگ آپ کر نہیں سکتے، نہ آپ روایتی جنگ کر سکتے ہیں، اور کچھ نہیں پتا کہ کس وقت یہ روایتی جنگ جو ہے غیر روایتی یا ایٹمی جنگ میں بدل سکتی ہے۔ بار بار عمران خان صاحب ایسے خدشے کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ ہاں، عمران خان اس کا جو ذکر کر رہے ہیں اس کی وجوہات کچھ اور ہیں، اس پر ہم آئیں گے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ وہ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جو بیل ہے وہ چھلانگ اتنی ہی لگاتا ہے، اس طاقت پہ لگاتا ہے کہ اس کا قلعہ اور اس کی رسی کتنی مضبوط ہے۔ ہمارا جو قلعہ ہے اور ہماری جو رسی ہے وہ بہت مضبوط نہیں ہے۔ ہماری اپنی جو کمزوریاں ہیں، معیشت کی کمزوری، سیاسی عدم استحکام، اور اب تک کشمیر کے مسئلے کو جس طریقے سے ہم نے حل کرنے کی کوشش کی ہے، جو غیر ریاستی عناصر ہیں ان کے ذریعے، جہاد کے ذریعے، جو تاریخی طور پر ہماری کوشش ہے، جو غیر ریاستی عناصر کو بھیج کے کشمیر کے اندر جو ان کی آزادی کی جو تحریک تھی اس کو جو جہاد کا جو ہم نے پوچھا لگایا، اس سے وقت گزرنے کے ساتھ ہماری جو پوزیشن ہے وہ کمزور ہوتی گئی ہے۔ اب اگر اپنے خطے کی بات کریں، خطے کے ممالک نے جس طریقے سے رد عمل، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، آپ اپنی مشرق اور مغرب میں جو ممالک ہیں ان کو ذرا دیکھتے جائیے۔ بنگلہ دیش جو کسی زمانے میں پاکستان کا حصہ تھا، انہوں نے کھل کے کہہ دیا کہ یہ تو بھارت کا اندرونی معاملہ ہے، ہم اس میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے۔ آپ کے ایک سفیر کولمبو میں، سری لنکا میں، آپ کو یاد ہوگا کہ 90 کی دہائی میں کوئی 27 سال ان کی اندرونی خانہ جنگی رہی ہے، جس کو ختم کرنے میں پاکستان نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ آپ کے سفیر جا کے ملے پرسوں جو سری لنکا کے صدر ہیں، اور آپ کے جو سفیر ہیں ہائی کمشنر، انہوں نے ایک بیان داغ دیا کہ جو صدر ہیں سری لنکا کے، انہوں نے پاکستان کی پوزیشن کی حمایت کی ہے اور کہا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں سے حل ہوگا۔ ابھی اس کی سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی کہ سری لنکا نے جواب دیا کہ جی ایسی کوئی بات ہم نے کی نہیں ہے، یہ جو معاملہ ہے یہ بھارت کا اندرونی معاملہ ہے اور ہم اس کی حمایت نہیں کرتے۔ اب آ جائے جو امہ جس کا ہم شور مچاتے تھے، اسلامی امہ، تو اسلامی امہ کے جو سب سے نزدیک ہمارے وہ تو یو اے ای ہے، انہوں نے تو جو دلی میں ان کے سفیر ہیں انہوں نے کہا کہ جی اس سے تو بھارت کے اندر جو ہے وہ انصاف کی فراہمی میں مدد ملے گی اور سلامتی کی صورتحال بہتر ہوگی اور اس سے ترقی ہوگی۔ تو انہوں نے تو ایک طرح سے بالکل بھرپور بھارت کا ساتھ دیا۔ اب وہ اعلیٰ ترین جو سول ایوارڈ ہے وہ دینے جا رہے ہیں۔
सऊदी अरब ने भी किसी तौर पे भी आपकी हिमायत नहीं की, सिवाय तुर्की के जिन्होंने एक हमदर्दाना मौक़िफ़ अख्तियार किया। उन्होंने भी ये नहीं कहा कि जी हम पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ मुकम्मल तौर पर खड़े हैं, लेकिन उनका मौक़िफ़ बहरहाल एक बेहतर था। और ईरान में जो रद्द-ए-अमल सामने आया, ईरान का रवैया हमदर्दाना है, लेकिन ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। जो आलमी ताकतें हैं उनमें सिवाय चीन के और कोई जो मुस्तकिल अरकान है सलामती काउंसिल में, वो आपके हामी नहीं है। ज़्यादातर दुनिया यही कह रही है कि जी आप दोनों मिलकर इस मसले को दो तरफ़ा ताल्लुकात से बेहतर करें। भारत कहता है कि जी हाँ, हम दो तरफ़ा ताल्लुकात के तौर पर इसको हल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब तक पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी की हिमायत करता है और जो गैर रियासती अनासर है उनकी हिमायत करता है, तो हमने बात नहीं अच्छा, की। हम इस पे पहले भी बात कर चुके हैं कि जो भारत के अंदर वाक़यात हैं, वहाँ पे आपको पता है अलाहियत पसंद तहरीकें भी हैं। फिर कश्मीर में जो मुज़ाहिरा नज़ारा है वो किसी तौर पर भी उसको रियासी टेररिज्म ही कह सकते हैं, जल्दी आप कहेंगे, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे फ़ौज अपनी लगाई हुई है। इसके बावजूद भारत की ब्रांडिंग सारी दुनिया में ऐसी है कि वो कह रहे हैं कि जब भी पाकिस्तान की तरफ इल्ज़ाम लगाते हैं तो दुनिया ऐसे लगता है कि उनकी बात पर यकीन करती है। हम जो अपने घर में एक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ चुके हैं, हमने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, इसके बावजूद भी अफ़गानिस्तान में कुछ हो तो भी हम पे इल्ज़ाम, कश्मीर में कुछ हो हम पे इल्ज़ाम, हम क्यों ना करें? इसलिए कि हमारे रियासत के जो कलीदी इदारे हैं और इस रियासत को चलाने वाले जो हैं, उन्होंने वक्त गुज़रने के साथ हमारी मईशत को कमज़ोर किया है और सियासी जो इस्तेहकाम है उसको कमज़ोर किया है। इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासी कुव्वतें हैं वो एक दूसरे के गले में हाथ है। आप देख रहे हैं कि इस कश्मीर के मामले के बावजूद जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें हैं उनके अक्सर रहनुमा जेलों में हैं और इमरान खान एहतसाब के एजेंडे पे चल पड़े हैं। मईशत आपकी कमज़ोर है, तो दुनिया के जो मफादात हैं अब वो भारत के साथ ज़्यादा एक तरह से उनका जोड़ है। पाकिस्तान की जो मईशत है वो हम तो कशकोल लेकर दूसरे मुल्कों के पास जा रहे हैं। अच्छा, आपकी बातों से मतलब आपकी बातों से दायरे की तासुर तो मिलता है और ये सच भी है। आपको ये लगता है कि पाकिस्तान की जो कमज़ोरियाँ हैं, मुआशी कमज़ोरियाँ या अंदरूनी जो हमारे मामलात हैं वो वजह है। अब इस कमज़ोरी का कितना एहसास है इमरान खान साहब को? इमरान खान साहब का बयान आपने सुना, उन्होंने कहा हम बात नहीं करना चाहते। जब आप सारी दुनिया को ये कह रही है कि आपका ये दोनों का मसला है, बातचीत से हल होगा, तो बात ना करने का ऐलान कितना इम्पोर्टेंट है, उसकी क्या इम्प्लिकेशन होंगे आने वाले दिनों में? इमरान खान की जो सियासत है और बयानबाजी है वो घड़ियाल का जो पेंडुलम होता है ना, उस तरीके से है। एक वक्त में इस किनारे पे है, एक वक्त में एक किनारे पे है। एक वक्त था कि ये दुआएं मांग रहे थे कि मोदी आ जाए इक़्तिदार में और उससे कश्मीर का मसला हल होगा। ट्रंप के सामने भी जो उन्होंने बातें की वो इसी तरह की थी। तो एक वक्त में वो सिर्फ मुज़ाकरात की बात थे। अब जो है वो कहते हैं कि जी मैंने बात नहीं करनी। नहीं, अब जो हालात हैं उन हालात को क्या उनका ये रवैया ठीक है गलत है? ज़ाहिर है, मतलब जो हालात बन चुके हैं, पहले तो वो पेश गोई कर रहे थे, हो सकता है कि उनको आप ऑप्टिमिस्ट होने का दे दें, अल्लाह के वो ऑप्टिमिस्ट थे कि भाई मोदी साहब जब दोबारा आएंगे तो ज़रा बेहतर हो इस जाएगा। वक्त मेरे ख्याल में इमरान खान के अगर आप बयानात को देखें, वो एक तरफ ये बात कर रहे हैं कि हमने बात नहीं करनी, दूसरी तरफ जो जंग का जो ख़तरा है उसको वो उभार रहे हैं। उससे उनका मकसद यही है कि दुनिया इस ख़तरे को भांप ले कि जंग होगी तो उसका नुकसान सिर्फ पाकिस्तान और भारत को नहीं होगा बल्कि पूरी दुनिया को होगा। तो किसी तरह से वो कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया इसके अंदर कूद पड़े और किसी तरह से मामले को पुरअमन तरीके से हल करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास भी हो गया, हमने पिछली बार उसके हवाले से कुछ बातचीत की थी, क्या नतीजा निकला उसका? देखिए, मेरे ख्याल में हम खुद संजीदा नहीं थे कि ये मामला सलामती काउंसिल में जाए। एक तरफ आपने चिट्ठी लिखी, लेकिन उस चिट्ठी के नतीजे में सलामती काउंसिल का इजलास नहीं हुआ। आप दुनिया का छोटा मुल्क भी अगर सलामती काउंसिल से कहे कि आलमी अमन को बहुत बड़ा ख़तरा है तो उस पर इजलास होगा, लेकिन पाकिस्तान की दरख्वास्त पे नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान को यकीन था कि अगर ये मामला
पाकिस्तान की दरख्वास्त को सलामती काउंसिल में जाएगा तो सलामती काउंसिल के जो मुस्तकिल अरकान हैं वो पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला नहीं देंगे और उसके नतीजे में जग हसाई ज़्यादा होगी, एक एहसास से पेशेमानी ज़्यादा होगी। लिहाजा चिट्ठी हमने भेजी, लेकिन चीन से हमने कहा कि आप इस मामले को ले जाएं। चीन ने भी ये मामला रस्मी तौर पर नहीं उठाया, बल्कि गैर रस्मी तौर पर एक बंद दरवाजे के तहत उसको कंसल्टेशन की, जिसका कोई हतमी नतीजा नहीं निकलना था, कोई बयान नहीं आना था, क्योंकि चीन को भी मालूम है कि ये मामला अगर वो ले जाएंगे रस्मी तौर पर, वो जो हार्स शू जो सेटअप है उसमें, तो उसमें 4 अरकान दूसरी तरफ होंगे और वो वीटो हो जाएगा और चीन को भी कुछ नहीं मिलेगा। अगर ये इंसानी हुकूक के मामले पर लेकर जाते हैं तो खुद चीन के ख़िलाफ़ बहुत सारे केस उन्होंने बनाए हुए हैं, तिब्बत का बनाया हुआ है, जो वीगर्स का बनाया हुआ है, अब हांगकांग में मुजाहरे चल रहे हैं, तो ये मामला उस तरीके से भी हल नहीं होना था। तो एक तरह से सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को हमने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, नहीं, ये उस हवाले से अवाम के लिए था, ये कश्मीर के कॉज के साथ जो पाकिस्तान का इतना अरसे का रोमांस है और हमारी कमिटमेंट, वो रोमांस ज़रूर मौजूद है, लेकिन जो मसाइल हैं कश्मीरियों के वो उससे हल नहीं होने वाले। कश्मीरियों के मामला हल होंगे अगर भारत अपने रवैये में कोई तब्दीली करे। बैनुल-अक़वामी मीडिया का एक मुस्बत किरदार ज़रूर है। ये वही बैनुल-अक़वामी मीडिया है जो कि हमें बुरा लगता था पहले, यही BBC, यही अल जज़ीरा, यही CNN, उन्होंने ही इस मामले को उठाया है कि जो इंसानी हुकूक की जो पामाली हुई है, तो वो उस हद तक तो है। लेकिन बात यह है कि लामहला भारत के अंदर जो क़ुव्वतें हैं वो अगर मोदी को पीछे हटाएं, जिसमें ख़ुद कश्मीरी अवाम की जो एक पुरअमन जो एक जद्दोजहद है उसका भी उसमें एक किरदार होगा। पाकिस्तान जितना भी शोर मचाता है उससे कोई बहुत ज़्यादा कश्मीर के अवाम को फ़ायदा नहीं है। समझ चुके हैं जी। हम बात कर रहे थे कश्मीर इशू जो अभी आईनी हैसियत तब्दील होने के बाद अब तक की जो डेवलपमेंट्स हैं, ज़ाहिर है बहुत मस्बत रद्द-ए-अमल दुनिया का नहीं रहा हमेशा से जब हम कश्मीर कॉज को लेकर दुनिया के पास जाते हैं। बहरहाल पाकिस्तान के पास जो ऑप्शंस हैं वो अगर उनको बेहतर तरीके से हम इस्तेमाल करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम असर अंदाज होने में कामयाब हो सकते हैं। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। कीप वॉचिंग नया दौर।